You have not just sung the song, you have painted the colors of our nation with your voices. Thank you, ML students, for giving us goosebumps and pride all at once. And now get ready for a performance that's going to melt your heart and lift your spirit at the same time. Let's welcome the pre-primary students with a thunderous applause as they bring us their musical tribute to India. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे
performing. Your voices carried innocence, joy, and love for India that could all feel. I request to Shruti to take over. I have the I have the privilege of inviting a leader who not only guides us academically, but also inspires us to become better citizens of this great nation. Her dedication, vision, and unwavering commitment to nurturing young minds truly reflect the spirit of service and patriotism that we celebrate today. Please join me in warmly welcoming our respected in charge principal, Dr. Anna Nina George, to share her message with us. सरोजिनी नायडू खाने का सरोजिनी नायडू आ गई Please come inside. Don't crowd. Come inside. All have come. See, all have come. Shall I start? Good afternoon to all of you. First of all, I have to congratulate Samir sir and his terrific team for this amazing, invigorating event to celebrate
Independence Day 2025. I think they need a big applause. Going further, I have to deeply appreciate the organizing group for coming up with very innovative and well thought of program. I think they need one more round of applause. In the midst of micro teaching and workshop, you have done a commendable job and deserve a thunderous applause. In fact, all the other groups have given the same amount of zeal and enthusiasm and made this day extraordinarily memorable. A big round of applause for all the other groups. Before I begin my speech, which will be in Hindi, I just wanted to say that all the four groups, they brought the entire freedom struggle in front of us. You did not leave a single freedom struggle person behind. Everybody was represented. Tremendous. I have to clap for you. This is much better than any video or any film that you can see. You just brought it alive and you made us feel that we have gone back to the freedom struggle days. Wonderful, wonderful picturization, beautiful costume and amazing narration. Each and every group. Narration was like spellbound narration. The narration was matching with the costumes that you were wearing. It was so good, fantastic. I think we can have a film institute here because all of us, there is our Ditej, we can start, we can make films. I think because our students are fantastic actors, wonderful speakers, wonderful narration, writing, everything is there. So I think we can make films. So yes. Only thing is that some of the British were looking. Only British, we were waiting for good British. It went on becoming poor and poor and a poor British. Only that was my problem. Otherwise, everything was good. And here and there, Gandhiji was a little bit. We were waiting for proper. We managed. Okay, Gandhi. All other costumes and everything was good. From where you brought all these wonderful costumes and the narration, the research that you have done about all of them, beautiful, beautiful narration, fantastic. So that I have to say that because very well done. And the 2-minute talk, that was something that I had thought of and I discussed with Sanjay sir and he said, why should it be a separate thing? Let us merge it with 15th August celebration. What a speech. And that one girl, I think pre-primary, she read the whole history from 1947 till 2025. What a vigorous way of speaking. It is not only the writing, the way she was speaking, she was conveying to us, even though it was a little lengthy, but we didn't mind it because it was going so good along with the tempo of what she has written. I think we should give her a big round of applause. Fantastic. Anybody can write it, but to deliver it with that tempo and throughout, she maintained that tempo throughout. Tremendous. So it was lengthy, nobody felt about it because we were feeling like, what is she going to say next? It was so fantastic. I don't know whether my speech will match with such wonderful performance that you have done. Let me see. I'll try. Hey, mere pyare watan, hey, mere bichhde chaman, tujh pe dil kurban. Hey, mere pyare watan, hey, mere bichhde chaman, tujh pe dil kurban. Tu hi meri आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल
काबुली वाला पिक्चर कभी आपने देखा हो या नहीं मुझे मालूम नहीं। 1961 का एक गाना है, बलराज साहनी के ऊपर दर्शाया गया, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। जिंदगी में एक बार तो ये पिक्चर बनती है, देखना ही चाहिए। काबुली वाला पिक्चर है, कभी आप देखिए। ये काबुली वाला जो पोएट्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है उस पर बना हुआ पिक्चर है, ज़रूर देखिए। तो ये जो गाना है बहुत ही रूमानी है, ये सुनने से बहुत अच्छा लगता है। ऐ मेरे प्यारे वतन, कितना अच्छा से वो गाया भी बहुत अच्छे से। अगर आप उसका ओरिजिनल गाना सुनेंगे बहुत अच्छे से गाया है। तो ये गाना आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है। मतलब इसमें एक शब्द जो है ये मुझे बहुत मतलब दिल को छू जाता है हमेशा, कुर्बान। आज हमने यहाँ जितनी भी झांकियाँ देखी वो सब कुर्बानी के ऊपर थी। उनके कुर्बानी की वजह से उनको नाम है। सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने यहाँ पे आपने देखा, जितने भी लोगों को आपने देखा, अगर आप उनको देखेंगे क्यों आपने उनका नाम लिया, एक ही चीज़ है, कुर्बानी। ये गाने में तुझ पे दिल कुर्बान, देश को कहते हैं, वतन को। ऐ मेरे वतन, तेरे लिए मेरा जान और दिल कुर्बान। मतलब फिर कुछ रहेगा नहीं, एक बार आप कुर्बान कर गए फिर कुछ बचता नहीं। आज वतन का मतलब क्या है वही बदल गया है। वतन मतलब क्या, यही मतलब बदल गया है। जब ये सेनानी जब थे उन लोगों के सभी के दिलों में एक ही मतलब था, वतन का। आज वतन का ही मतलब बदल गया है। आज हमारे बीच जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम जो शब्द उपयोग करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए, मुझको, ये शब्द ज़्यादा है। हम, ये शब्द बहुत कम है। इस तरह का जो समाज है इसको सोशियोलॉजी में नार्सिसिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। नार्सिसिस्टिक मतलब जो अपने बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, वो सोसाइटी को नार्सिसिस्टिक सोसाइटी ऐसे कहते हैं। तो आज का जो ज़माना चल रहा है, जो सेल्फी, जो मैं, मेरा, मेरा घर, तो मैं बहुत सोचती थी कि ये जितने भी वीर सेनानियों के बारे में हमने आज बात किया, उनके क्या घर नहीं थे? वो उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे घर वालों का क्या होगा या मेरा क्या होगा। वो तो जान देने पे, वो तो उनके परिवार नहीं थे क्या? मुझे हमेशा ऐसा लगता है ये क्या अकेले रहते थे, इनका कोई नहीं था, इनको भविष्य की कोई परवाह नहीं थी, इनको नौकरी नहीं थी क्या? ये सब मेरे दिमाग में आता है। तो इनको किसी ने बोला था क्या तुम कुर्बान कर दो अपने आप को, क्या ज़रूरत थी? तो उनके दिलों में वतन का एक जज्बा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और आज इतने सालों के बाद, ये सब तो आज तो कोई रहे नहीं, मगर आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं। मंगल पांडे हो या जो भी है, इनको सबको हम याद करते हैं। क्या हमको याद रखेंगे लोग 100 साल के बाद? ये सोचने वाली बात है। जब तक कुर्बानी नहीं होगा वो याद नहीं रहेगा। कुर्बानी उसका नींव है, दैट्स द फाउंडेशन। सैक्रिफाइस इज द फाउंडेशन। देशभक्ति गाना सुन के बहुत जुनून आता है, जज्बा बहुत आता है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में वो जुनून और जज्बा मिट जाता है। जैसे मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है, वो ख्याल, क्या ख्याल है कि अगर आज के माहौल में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी होती तो कैसा होगा, कितना मज़ा आता। सोच के देखिए, कोई आएगा ही नहीं रोड पे, बोले कि मैं व्हाट्सएप से ही मैसेज भेज देता हूँ। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो व्हाट्सएप मैसेज, बोला ना छोड़ो व्हाट्सएप मैसेज, बाद में इंस्टाग्राम हमारा भारत छोड़ो फोटो। ऐसे हमारे आंदोलन होते हैं, क्योंकि कोई रास्ते पे कोई आएगा ही नहीं, हम इसी से ही हम शायद आंदोलन करते हैं। क्योंकि ये सब जो लोगों ने किया, जो आपने आज देखा, तो ये निस्वार्थ होकर के उन्होंने किया था। तो उस ज़माने का और इस ज़माने के जब समाज को देखेंगे, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आज हम नहीं सोचते मैं, परिवार के अंदर भी लोग मैं यही सोचते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे बुरा लगा, मुझे उसने ऐसे क्यों बोला, मेरे को कम मिला। ऐसे में, ऐसे स्वार्थ में देश कहाँ आएगा, वतन कहाँ आएगा? वो तो आएगा ही नहीं।
जब हम रोड में जाते हैं तो हम गाड़ी चलाते हैं तो हम इंडिकेटर किस लिए दिखाते हैं? ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। गिरेगा गिरेगा मरेगा, मेरा क्या, मैं गया। हमारा ये अभी का जो तरीका है, ये तरीका है। तो हम दूसरों के बारे में सोचना तो दूर की बात, वतन तो सवाल ही नहीं आता। तो ये बहुत फ़र्क है समाज में, उस ज़माने के समाज में और आज के समाज में बहुत फ़र्क है। क्योंकि आज हमारे पास जो वक्त है वो हमारे बारे में सोचने में हम निकाल लेते हैं। वतन और देश वगैरह तो बहुत दूर की बात। और हमारा मेन अभी रहा है लड़ाई। हम लड़ाई बहुत करते हैं मगर गलत बातों के लिए लड़ाई करते हैं। भाषा की लड़ाई, धर्म पे लड़ाई, जात पात पे लड़ाई, और जो मन में आ गया हर चीज़ पे लड़ाई। और सब जगह हमको लड़ाई आपको दिखाई देगी। तो ये लड़ाई का नींव क्या है? नींव ये है कि मुझे चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, मैं लड़ाई। ये पहले ज़माने में शायद नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे फ़र्क है हमारे स्वतंत्रता में। और मैं वही एक शब्द लेके आई थी मैंने, मगर काफ़ी बार सुना कोई नरेशन में, जान न्यौछावर कर देना। मेरे को ये शब्द जो है सेक्रीफाइस का दूसरा एक है, जान न्यौछावर करना। तो मैंने 2 बार 2 नरेटर को ये बोलते हुए मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। जान न्यौछावर करना मतलब पूरा जान दे देना। तो ये करने वाले बहुत ही न्यूनतम लोग रह गए हैं, जान न्यौछावर करने वाले। और एक गीत है, शायद आपने सुना हो, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हकीकत पिक्चर का ये गाना है, इतना मतलब जज्बा भरा वाला गाना है। अगर आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना आप सुनेंगे तो ज़रूर रोएंगे, क्योंकि उन्होंने जो गाया है और जो पिक्चर में जैसे दर्शाया है, हकीकत पिक्चर में ज़बरदस्त, रोना तो आएगा ही। मगर इसमें उन्होंने कहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। मतलब वो जो चले गए, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उन्होंने क्या किया? देश को हमारे हवाले कर दिया, आपके हाथ में कर दिया। अगर आज वो लौट के आएंगे और पूछेंगे जो देश आपके हवाले किया था, आपने उसका क्या किया, क्या जवाब देंगे? मुझे ऐसा लगता है हम क्या बोलेंगे? क्या उनको ऐसा लगेगा हमने बेकार में बलिदान दिया? ऐसा तो लगेगा तो नहीं, क्योंकि क्या उनको ऐसा लगेगा कि यही भारत को देखने के लिए ही हमने बलिदान दिया था? क्या वो खुश होंगे? मुझे पता नहीं, मगर मैं कभी ऐसे सोचती हूँ। क्योंकि ये कहते हैं आपके हवाले ये वतन कर दिया, मतलब आप सौंप के वो चले गए, तो हमने उसका क्या किया? ये इस बात पे भी हमको सोचना है। हमने इनके सबके नाम बहुत रोशन किया उन्होंने अपने आप के बारे में, मगर उन्होंने जो बलिदान दिया उसका हुआ क्या? वो जो लड़की प्री प्राइमरी की लड़की थी, उसने बहुत, भारत ने जो हासिल किया उसके बारे में बहुत जोर शोर से उसने बताया। सही बात कहा उसने, मगर हम भी थोड़े इर्द गिर्द देखेंगे, बहुत कुछ हम लोग ने खो दिया है। हम गाते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तो इसमें मिले सुर, सबका एक साथ बने तो सुर बने हमारा। जैसे कि अगर आप एक गुलदस्ता देखेंगे, उसमें अलग अलग रंग के फूल होते हैं, तब जाके गुलदस्ता अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, वो जब इंडिया में होते, इसलिए इंडिया डाइवर्स होता है और उसमें कलर इतना ज़बरदस्त। आज भी देखिए कितना कलर आया है हमारा, क्योंकि भारत में बहुत कलर है। ये शायद ही कोई देश ऐसा होगा जितना इतना रंगीन और इतना मतलब कल्चरली रिच कंट्री बहुत कम होगा। तो उसमें वो मिले, सब मिले सुर मेरा तुम्हारा, अलग अलग सुर में नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये बहुत ही प्रचलित गाना था, उसके अंदर भारत की सारी भाषाओं का उसमें जिक्र किया है, बहुत ही अच्छा गाना था। तो वो गाना दिखाना यही चाहता है कि सबका सुर मिल करके तो सुर बने हमारा। बहुत ही अच्छे अच्छे गायकों ने मिलके उसको गाया था। तो हमारे देश की एक ही बात है, आपने शायद ये गाना सुना हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सजा, वे गाना सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। तो हम ये भारत में रहने
वाले, ये सब अभी गीत में ही रह गया, क्योंकि अभी हम सब मैं और मेरा वो भारत वाला आइडिया जो है वो सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पे ही हमारे दिलों में आता है। तो हमने कभी ये सोचना चाहिए कि क्या हम भारत के लिए कर रहे हैं या हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो बहुत ही आजकल जो चल रहा है बहुत ही नार्सिसिस्ट हो गया है। ये जो हमने पूरा देखा 4 ग्रुप्स ने जो दिखाया हमको अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी, ये इनका मूल था निस्वार्थ, इनका मूल था सैक्रिफाइस। आज हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा स्वतंत्रता का हमको पूरा मतलब जश्न जैसे कि दिखाया। दिखने में तो जश्न था मगर तब बहुत लड़ाई था। तो ये पूरा जो आप लोग ने हमारे सामने रखा था पूरा मज़ा भी आया और आप लोग ने हमको हमारे इरादे बुलंद करने के लिए वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त एवरी ईयर, क्योंकि हम कभी कभी वो भूल जाते हैं कि भाई देश के लिए। तो ये दिन फिर से वो जैसे कि ट्रैक पे हम वापस आ जाते हैं कि हाँ हमको देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है। ऐसी जो बातें हैं उसको फिर हमारे दिल में दोहराने के लिए, हमारे इरादे और बुलंद करने के लिए ये दिन फिर से आते हैं। तो जाते जाते सिर्फ एक ही पंक्ति में गाऊंगी। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। गाने में अच्छा लगता है मगर करना अलग बात है। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। गौर फरमाना। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। Wow. We are truly blessed to witness such a wonderful performance by ma'am. Can we give ma'am a round of applause, please? Thank you, ma'am, for your inspiring words. They have rekindled our pride in the nation and reminded us of our duty towards the progress. We value your guidance, vision, and encouragement that light the path for us. As we come to the end of this program, it's time to express our heartfelt gratitude to everyone who made this celebration possible. I now invite Ms. Krutika to deliver the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. On behalf of the organizing committee, it is my privilege to express our deepest gratitude to Dr. Dada Veds, College of Education, Ponda, for giving us this opportunity and platform to host this memorable event. We are truly thankful to our respected Principal, Dr. Ananina George, for their constant support, guidance and encouragement, which inspired us to work with enthusiasm and dedication. Thank you, ma'am. Our heartfelt thanks goes to our mentor and guide, Mr. Sameer Naik sir, whose invaluable advice, motivation and patience have been a constant source of strength throughout the planning and execution of this program. We also wish to extend our sincere appreciation to our honorable judges for taking the time to be with us today, lending their expertise and evaluating the performances with fairness and insight. We are equally grateful to our faculty members for their encouragement and presence, and to our non-teaching staff for their hard work behind the scenes ensuring everything ran seamlessly. I extend my heartfelt gratitude to all our amazing team members who work tirelessly behind the scenes to make this event a great success. A big thank you to those who poured their creativity and energy into the beautiful decorations that have brought such a festive charm to our surroundings.
Thank you to our friends who took charge of the arrangement for refreshments, ensuring that our guests and participants are well taken care of. A heartfelt thanks to the stage management team who kept everything running smoothly and ensured every moment unfolded just as planned. I would also like to appreciate the efforts of all our team members for organizing this event with dedication from planning to execution, making sure every detail was looked after. A special mention to the Rangoli